بہت ساری دعائیں ہماری اس لیے سنی نہیں جاتی کیونکہ ہم پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہوتے. خدا نہیں سنتا. خدا پاک لوگوں کی, خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے متی 5:8, مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو, اب خدا کو دیکھنا ہے, آپ خدا کی حضوری میں ہیں, خدا سے باتیں کرنی ہے, تو کیا ہم ناپاکی کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں بغیر پاکیزگی کے, چاہے اس کا فضل کا تخت ہے, تخت تو ہے اس کا, وہ بادشاہ ہے, تو ہمیں اس کی حضوری میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر یہ اقرار بھی ہے اپنی کمی کمزوریوں کا, یہ بھی ہے. تو ہمارے دل کا پاک ہونا خدا کی حضوری میں بہت ہی ضروری ہے. اس لیے اپنی تمام غلطیاں, گناہ, تقصیروں, بے باکی گناہ, پوشیدہ گناہ, ہر ایک گناہ کا خدا کے حضور میں اقرار کرنا ہے. اور یہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ دل میں گناہ اور بدی, برائی جو ہے وہ نہ ہو. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 66 اس کی 18ویں آیت میں, اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری. اب یہ دیکھ لیں, ہم نے اگر اتنی دعائیں کر لی ہوئی ہیں پہلے جو بدی کی حالت کے اندر کی ہوئی ہیں, تو خدا نے کوئی دعا نہیں سنی. برا بھی لگے گا کہ اتنی دعائیں ہم نے آج تک کر لی ہیں, تو اب یہ دیکھیں گے کہ برائی ہے کیا ہمارے اندر جس کے لیے ہماری دعا کبھی نہیں سنی جاتی. تو لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. تو اگر دل پاک نہیں ہے تو پھر اس دعا کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنی چاہے مرضی لمبی دعا کر لیں, چاہے جو مرضی کر لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یوحنا 9 باب اور اس کی 31 آیت کے اندر لکھا ہے, ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا, لیکن اگر کوئی خدا پرست اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی. تو یہ دعا کرنا کن کا کام ہے؟ ان کا جو خدا کے بیٹے یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں. آج لاکھوں کروڑوں, کل پرسوں آپ نے دیکھا لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دعائیں کی ہیں, آج بھی کر رہے ہیں لوگ, تو کیا خدا سنے گا؟ خدا دعا نہیں سنتا. اگر خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا, اگر کوئی خدا پرست اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے. اور زبور 32 اور اس کی 5 اور 6 آیت میں لکھا ہے, میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا. میں نے کہا میں خدا ان کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا, اور تو نے میں نے گناہ کی بدی کو معاف کیا ہے. اس لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے, اور وہ وقت جب وہ مل سکتا ہے وہ پاکیزگی کی حالت ہے. جب آپ پاکیزگی, جب آپ کو خدا کے حضور میں ڈر نہیں لگ رہا, جیسے آدم کو ڈر لگ رہا تھا خدا کی حضوری میں کیونکہ اس کے اندر گناہ تھا. جب میرے اور آپ کے دل کے اندر گناہ ہے تو پھر خدا کے حضور میں ہم دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ سنی جانی نہیں ہے. ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ خدا کے حضور میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا پاک لہو اپنے اوپر لیں, اس سے دھل کر, اس سے پاک ہو کر اپنی درخواستوں کو, اپنی دعاؤں کو, اپنی التجاؤں کو پھر اس کے حضور میں لے کے آئیں. اور یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور سچا. تو اگر ہم یہ اپنی کسی پاکیزگی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی کسی روزے ریاستوں کے اوپر یہ کو دھیان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پاک ہیں, جو کچھ ہم کہیں گے وہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے بیٹے کے لہو سے ہمیں دھلنا اور پاک ہونا ہے, اس کے بیٹے کے خون سے ہمارے تمام گناہ پاک ہوں. اب ایک میں بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں, اور یہ ہم میں سے ہر ایک ایماندار کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہے, اور اگر یہ ہے تو پھر بھی دعا سنی نہیں جاتی. لکھا ہے متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 21 سے 24 تک, تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ چوری خون نہ کرنا, اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزاوار ہوگا. بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو تجھ سے کچھ شکایت ہے, تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر, تب آ کر اپنی نظر گزران. اب یہ دیکھ لیں, ہم نے کئی دعائیں ایسے کر چکے ہیں, بڑی دعائیں ہم نے ایسے کر لی ہیں. ہمارے بھائیوں کو ہم سے بڑی شکایتیں ہیں,
हमें भी अपने भाइयों से शिकायतें, और इन शिकायतों से भरे हुए हम खुदा की हजूरी में जाते हैं और कहते हैं खुदा हमारे लिए ये कर, खुदा फलां कर, खुदा टिंगान कर। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है अगर तू कुर्बानी, ये हमारी दुआ जो हम कुर्बानी की सूरत में हम लेके आ रहे हैं, और ये है कि अगर तुझे याद आए, तो हमारी शायद याद इस मामले में हमारी याददाश्त नहीं है कि हमारे साथ कोई नाराज है, किसी का हमने दिल दिखाया हुआ है, किसी को हमने पता नहीं क्या कुछ बोल दिया हुआ है और वो कितना दुखी बैठा हुआ मेरे लिए, ये हमारे याद नहीं रहता। और कभी ऐसा हुआ है, कभी बहुत कम ऐसा रेयर होगा कि कभी किसी ने दुआ करते वक्त याद आया हो, ओए भाई नाराज हो, अच्छा मैं दुआ छोड़ के चला जाता। हम कहते नहीं, करते जाओ, लेकिन ये रियाकारी की दुआ है, इसका कुछ फायदा नहीं। ये रियाकारी की दुआ, जितनी मर्जी कर ले, और बड़े बड़े खादम, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े लोग, डीकन, बिशप भी इस गुनाह के अंदर हैं, क्योंकि वो माफ नहीं करते। उनको शिकायत है, दूसरों को उनसे शिकायत है, लेकिन वो कभी भी माफ नहीं करते, क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है। वो समझते हैं कि लोग कहेंगे कि ये इसने माफी मांग ली है, ये इसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। लेकिन खुदा के कलाम में मरकस की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, और अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और आगे ब्रैकेट में लिखा है, और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ। अब देखें, ना माफी का गुनाह इतना बड़ा गुनाह है जिसको हम इतना लाइट लेते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा था फकीर फरीसियों को ज़ना करो, ये वो कातलो। उसने कहा था ऐ रियाकारो, ये बहुत बड़ी रियाकारी है कि हम अपने दिल के अंदर दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, हम दूसरों की तरक्की पसंद नहीं करते, हम दूसरों के लिए जो है बहुत सारी बातें दिल में करते हैं, हम बहनों के साथ उनकी चुगलियां और पता नहीं क्या क्या करैक्टर को डिस्कस किया जाता है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि दिल के अंदर इतना गुलाजत भरी हुई है, गुनाह भरा हुआ है कि हम बहुत कुछ ऐसा रख के फिर खुदा के हुजूर में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम जाते हैं तो यकीन जाने मेरे बहनों भाइयों, ये दुआ नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जब कभी तुम खड़े हुए दुआ कर, बैठे हुए भी हो, लेटे हुए भी हो, दुआ है। जब अब दुआ कर रहे हो और तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो, आप कितनी शिकायतों के साथ भर के हम दुआ करें, अच्छी बात नहीं है, कुछ फायदा नहीं। तो पकीज़गी के बगैर और माफ ना करने के सबब से हमारी दुआएं सूदमंद नहीं है, और ये दुआएं रियाकारी की दुआएं हैं, और जिस से ना दुआ करने वाले को फायदा है और ना जिसके लिए हम बरकत चाह रहे हैं उसको भी कोई फायदा नहीं है। बड़ी हाथ उठा के चाहे बरकत करे, लेकिन अगर उसके लिए दिल के अंदर नफरत है तो फिर दुआ का कोई फायदा नहीं है। तो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करने से हमारा शऊर साफ होता है, ज़मीर साफ होता है, हल्का होता है, और हम पाक होते हैं। और हमारे दिल के अंदर अगर शिकायत है तो ये हालत भी बदल जाएगी जब हम खुदा के हुजूर माफी मांगेंगे और उस शख्स से भी कहें कि मुझे ये शिकायत थी, या आपको अगर मुझसे ये शिकायत रही है तो मैं नहीं चाहता कि आपके दिल के अंदर कोई बात रहे। तो खुदावंद हमें माफ करने वाला है। हम अपने भाई से अगर कहेंगे, अपनी बहन से कहेंगे, तो वो भी यकीनन हमें माफ करे। लेकिन जब हम दुआ रबानी में भी पढ़ते हैं, जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया, अपने कसूरवारों को माफ किया है, तो फिर तू, ये हम खुद शर्त लगा देते हैं अपने ऊपर कि अगर हमने माफ किया तो फिर तू माफ कर, अगर हमने नहीं किया फिर तू भी हमें माफ ना कर। तो इसलिए हमें ये जरूरी है, और ये इसके लिए पकीज़गी है। अगर ये भी हमारे दिल के अंदर है तो इसका मतलब हम नफाकी की हालत में है और पकीज़गी नहीं है। आगे 5वां, मुहाफ़ज़त। भाई कितना टाइम हो? अच्छा, ओ थैंक यू। मुहाफ़ज़त, आप जरा सुनने में तेज रहे, मैं तेज बोलता हूं। मुहाफ़ज़त, अब आप खुदा के बेअब भर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह के कादर और जलाली खून से पाक हो चुके हैं, और अब आपने मज़ीद दुआ के अंदर बढ़ना है। और मैं समझता हूं अगर आपने जिस तरह से मैंने आपको बताया है इस तरह दुआ करते रहे तो आधा पौना घंटा तो आप दुआ कर सकते हैं, इतनी तो होगी दुआ। तो लिखा हुआ है याकूब 5 बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अब रास्तबाज की दुआ का वाकया ही असर होगा, क्योंकि उसने रास्तबाजी के तमाम तरीकों को पूरा कर लिया है। उसने खुदा की सताइश कर ली है, उसने उसकी
साइश कर लिया, उसने सिजदा कर लिया, उसने शुक्रगुजारी कर लिया है और उसके बाद वो अब पाक हो गया। तो जब पाक है तो अब वो खुदा को देख सकता है, अब वो खुदा से बातें कर सकता है, अब खुदा को अपना मुद्दा बयान कर सकता है, अब खुदा को अपनी इल्तिजाएं, अपनी रिक्वेस्ट जो है वो दे सकता है। तो अब वक्त है कि हम मुहाफ़ज़त ले उसकी, क्योंकि लिखा हुआ है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो अब आपकी दुआ से कुछ जब होगा तो फिर जो आपका अपोजिट है, जो आपकी अपोजिशन करता है, जो आपका मुखालिफ है, तो क्या वो चैन से बैठेगा? लिखा है दानियल उसका 10 बाब उसकी 12-13, तब उसने मुझसे कहा, ऐ दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आर्जी करी, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। पर फर्ज की मुमलकत के मुवक्किल ने अब 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर माइकाइल जो मुकर्रर फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैंने शाहने फर्ज के पास रुका रहा। अब एक रास्तबाज है जिसने दुआ शुरू की है, और जब उसने दुआ शुरू की है तो आसमान की फौजें हरकत में आ गई हैं। आसमानी आलम के अंदर, उस आलम के अंदर एक बड़ी अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि एक रास्तबाज ने दुआ शुरू की। आपकी दुआ का असर है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं, रास्तबाज की दुआ के साथ मसले हल होते हैं, रास्तबाज की दुआ के सबब से कौमें आजाद की जाती हैं, रास्तबाज की दुआ के सबब से जो आस्तर आप देखें, रास्तबाज उसने दुआ की और यहूदी कौम बच गई, बहुत कुछ होता है। रास्तबाज ने दुआ की, तो जब दानियल और रास्तबाज ने दुआ की तो जंग, एक बड़ा जंग का आलम हो गया। खुदा के लोग, खुदा के फरिश्ते और अब्लीस के फरिश्तों के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो गई। आप अपने आप को आम ना समझे, आपकी दुआ असर रखती है, और अगर आप इस बात पे ईमान नहीं रखते तो फिर आपका दुआ का फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये ईमान से दुआ होती है। आपको ये ईमान रखना चाहिए कि मैं उसका तालिब हूं और जो कुछ मैं दुआ करूंगा उसका जवाब मिलेगा। तो जब ये हुआ तो दानियल की वजह से आसमान पर बड़ी जंग हुई, और हम भी उस जंग को शुरू करने में बराबर के शरीक हैं जब आप शुरू कर देते हैं। जब मैंने इस सेमिनार के लिए दुआ करनी शुरू कर दी तो जिस मैं हालात से गुजरा हूं, ये मुझे पता है कितने प्रेशर आते हैं। पास्टर साहब मुझे बता रहे थे कि इतने खानदान के अंदर इतने प्रेशर हैं। जब से ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है तो ये प्रेशर आएंगे, क्यों? आपने दुआ करना शुरू कर दिया, आपने किसी अच्छे काज, आपने खुदा की बादशाह को वुसअत देने के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया है आपने। और ये असीरी से आजाद कराना चाहता था बनी इसराइल को, इसलिए वो दुआ कर रहा था। और जब इसने ये दुआ की तो अब्लीस की कुव्वतें हरकत में आ गई, मिकाइल को हरकत में आना पड़ा, खुदा के फरिश्तों को जो है वो हरकत में आना पड़ा, और उन्होंने उसका मुकाबला किया। खुदा के कलाम में इफ्सियों 6 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। तो अब मजबूत हमने कैसे बनना है? हथियारों से ही होना है ना, हमने मुहाफ़ज़त के साथ ही तो होना है। हमारी मुहाफ़ज़त होगी। अब उसकी अगर मुहाफ़ज़त ना करते तो जो फरिश्तों का मुकाबला कर सकते हैं, हम इंसान उनके सामने क्या है? तो हमें अपनी मुहाफ़ज़त का भी ख्याल करना है कि हमारी मुहाफ़ज़त हो। और इसलिए जब ईमानदारों के लिए दुआ करें, जब आप किसी बड़े कॉज के लिए दुआ करें, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने लोगों को बरे के लहू में जरूर छुपा लें, क्योंकि वो ढूंढता फिरता है। कौन? शेर अब्लीस। वो ढूंढता फिरता है कि किस तरह से वो किसी को फाड़ खाए, हम में से किसी को फाड़ खाए। तो ढूंढता क्यों फिरता है? इसलिए ढूंढता फिरता है क्योंकि हम बरे के लहू में छुपे हुए हैं, उसको नजर नहीं आते। अगर वो हम उसको नजर आए, और नजर उस वक्त आएंगे जब हम उसके लहू में छुपे हुए नहीं होंगे, फिर उसको नजर आएंगे, फिर वो हम पर अटैक कर सकता है। अगर हम उसके लहू में छुपे हुए हैं, कवर हैं, तो फिर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखें, पहला आदम खुदा के मंसूबे के अंदर था, लेकिन वो अब्लीस के मंसूबे का मुकाबला नहीं कर सका। शायद उसके पास वो प्रोटेक्शन नहीं थी, उसके लिए शायद कोई दुआ करने वाली, शायद उसने खुद दुआ नहीं की थी, तो वो उसका सामना नहीं कर सका। तो आज हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें खुदा के हजूर में अपनी मुहाफ़ज़त की जरूरत है, हमें खुदा के हजूर में दुआ करें कि खुदावंद आपकी वजह, क्योंकि आप हैं जो आसमान को खोलते और बंद करते हैं। तुम में से 2 शख्स इस जमीन पर जिस बात के लिए मुतफिक हो, जो कुछ बंद हो गए आसमान पर,
باندھ جائے گا جو کچھ اس زمین پر کھولو گے آسمان پر کھل جائے گا. تو آپ باندھنے اور کھولنے والے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیا؟ آپ کے وسیلہ سے بہت بڑی جنگ ہوتی ہے. فرشتے حرکت میں آتے ہیں, ابلیس کی قوتیں حرکت میں آتی ہیں, طریقے کی قوتیں زور لگانا شروع کر دیتی ہیں. تو آپ کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے.